Namaste Gurukulians. I hope you all fit and fine at your home. So let us start the discussion of the chapter. In the previous class, we discussed about a chapter that is key elements of a democratic government for class 6 pole science. Today we will continue our discussion with the same chapter. Let us take a quick recap before we move further. So in the last class, we tried to understand the concept of democratic government, and we also tried to understand that why democratic government is necessary, right? Plus we also tried to understand that with the example of the story of South Africa, that how South Africans struggled for their freedom, right? The original native of South Africans were the black people. The white South Africans were the settlers who came from Europe, who came from other continents, and the mixed races were the Indian people, right? Because they were either white or brownish, so that's why they were called as mixed race. So they came here. So different races came in the continent of South Africa, but the dominant race was the whites. In South Africa, there was a system of rule that was known as apartheid system, wherein people were differentiated on the basis of their color, on the basis of their race. White people means you are superior, black people means you are inferior. Struggle for freedom. This we'll see now, that how South Africans struggled for freedom, how South Africans waged, you can say, a war. A war means through different ways, through reacting whatever the whites had given to them. But before that, we must understand that how were whites and blacks differentiated in the continent, and what were the facilities that blacks were not having but whites were having, and how this African National Congress was formed, etc., etc. So let us start the story to understand this. South Africa is a country that has people of several races. South Africa एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे रेस, अलग अलग कास्ट के लोग हैं. There are black people who belong to South Africa. हमने डिस्कस किया पिछली क्लास में कि black people है जो South Africans हैं, whites who came from Europe came there to settle, and Indians who came there as laborers and traders. अगर आप अपने NCERT बुक में देखेंगे तो वहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी हुई है. कहानी ये है कि माया नायडू नाम की एक बच्ची, साउथ अफ्रीकन बच्ची होती है. वो 11 साल की होती है और वो एक दिन अपने घर को साफ कर रही होती है. उसका घर जोहानिसबर्ग में होता है. पुराने बक्से को ठीक करने में अपने मम्मी की मदद कर रही होती है. तो वहाँ पर उसने देखती है कि एक स्क्रैप बुक मिलता है. जनरली बहुत सारे लोगों की हॉबी होती होगी स्क्रैप जमा करने की. स्क्रैप बुक हम लोग भी करते थे बहुत पहले. स्लैम बुक होता था, इसमें अलग अलग लोगों के नाम, हॉबीज़, फोटो, सिग्नेचर, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ऐसा कुछ. बहुत लोगों को पुराने पिक्चर्स जमा करने का शौक होता है. सो शी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. देयर वर मेनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज. बहुत सारे बच्चों की फ़ोटो थी उसमें. लगभग जो बच्चे थे वो 14-15 साल के स्कूल जाने वाले बच्चे थे. When she asked her mother who the boy was, she told that he was called Hector Peterson. जब माया ने अपने मम्मी से पूछा कि ये कौन है, तो her mother told that the name of the boy was Hector Peterson. Right? That was the name of a boy. He had been shot by police. Maya was shocked. Why? She asked. और पता क्या चला कि हेक्टर पियर्सन को पुलिस ने गोली मार दी थी. क्यों? देखते हैं. हर मदर एक्सप्लेन, तब उसकी माँ ने बताया दैट साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्नड बाय अपार्थेड लॉज. जो पुराने समय में साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका, वहाँ पर कौन सा रूल चलता था? अपार्थेड लॉज. इसमें क्या होता था? ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ वाइट्स. Blacks were not allowed to mingle with
whites. So this was basically the apartheid law, right? Blacks were not allowed to mingle with the whites, and African people were divided into white, black, Indian and colored races. According to these laws, these races were not allowed to mingle with each other, to live near or even to use common facilities. जैसे मान लीजिए बस स्टैंड में एक बस आई, उस पर सभी लोग चढ़ गए, नहीं, बस स्टैंड पर अगर बस आती थी और वो बस वाइट्स के लिए होती थी, बस के अंदर आप घुसेंगे तो वाइट्स के लिए अलग सीट्स होते थे, उस पर कोई ब्लैक नहीं बैठ सकता था। जो ब्लैक की सीट थी उस पर तो ब्लैक बैठेगा, लेकिन वाइट की सीट अगर खाली भी है तो उस पर कोई ब्लैक नहीं बैठ सकता था। ऐसे लॉज को अपार्थेड लॉज कहा गया था। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, माया को इस बात पे विश्वास नहीं हो पा रहा था दैट इन हर कंट्री सच थिंग्स वर हैपनिंग, ये हैपेंड। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, मायाज मदर साउंडेड एग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थेड। माया की माँ जब ये माया को बता रही थी तो उसके आवाज़ में काफ़ी गुस्सा था, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज, उसने माया को बताया दैट इन दोज डेज हॉस्पिटल्स वर सेपरेट, हॉस्पिटल्स भी सेपरेट थे, एंड वर एम्बुलेंसेज, अगर किसी को एम्बुलेंस ले जाने के लिए भी आती थी तो वो भी सेपरेट था। इसका मतलब क्या हुआ, वो एम्बुलेंस जो वाइट्स के लिए होता था उस पर ब्लैक्स अपना अधिकार नहीं जमा सकते थे, राइट। सो नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स। क्या वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में डिफरेंस थे, राइट। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड, हॉस्पिटल्स वर सेपरेट, एम्बुलेंसेज वर सेपरेट, मीन्स एन एम्बुलेंस मेंट फॉर वाइट पीपल, एक एम्बुलेंस जो वाइट पीपल के लिए बना हुआ है, इट वॉज वेल इक्विप्ड, उसमें हर तरह के फैसिलिटीज़ होते थे। लेकिन ब्लैक पीपल को अगर किसी एम्बुलेंस की ज़रूरत होती थी तो वो बिल्कुल भी इक्विप नहीं होता था, कोई पुरानी खटारा गाड़ी दे दी वैसे लोगों के लिए, ठीक है। स्कूल जो थे वो सेपरेट थे, वाइट्स के बच्चे अच्छे स्कूल में जाते थे, ब्लैक्स के बच्चे स्कूल जाते भी थे और नहीं भी जाते थे, राइट। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस, इवन बस स्टॉप्स बट डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल, ब्लैक और वाइट पीपल के लिए बस स्टॉप्स भी अलग अलग होते थे। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट, नॉन वाइट्स जो ब्लैक पीपल होते थे उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर वाइट, जो साउथ अफ्रीका में सबसे अच्छी जगह है, सबसे अच्छी ज़मीन है, उस पर किसका कब्जा होता था, वाइट्स का कब्जा होता था। एंड नॉन वाइट्स हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड, और नॉन वाइट्स को जो सबसे ख़राब ज़मीन होती थी उस पर रहना पड़ता था। दस ब्लैक्स एंड कलर्ड वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट्स, और इस तरह से ब्लैक्स और कलर्ड पीपल जो इंडियंस थे उन्हें नॉन वाइट्स माना जाता था और उनके साथ बहुत तरह की जाति भी की जाती थी। ओके, नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स। यहाँ हम लोग ब्लैक यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग नॉन वाइट्स यूज करेंगे। तो वाइट्स के लिए हमने क्या देखा, बेस्ट हॉस्पिटल, इक्विप्ड एम्बुलेंसेस होते थे उनके लिए, है ना, रिजर्व्ड सीट्स इन buses, trains, best land was reserved for whites, और क्या था, separate schools, etc. So in a way we can understand कि हर एक जो बेहतर चीज़ थी वो वाइट्स के लिए था। अब नॉन वाइट्स के लिए क्या था, नो सेपरेट हॉस्पिटल्स, सेपरेट क्या था ही नहीं हॉस्पिटल्स,
और एम्बुलेंसेस नॉट अलाउड टू वोट, वोटिंग का भी हक नहीं था इनको, है ना। चिल्ड्रन वर लिविंग इन, एक तरह से मान लो स्लम्स में ही रहते थे उनके बच्चे। अगर हम अच्छा लैंड नहीं देंगे किसी को तो बच्चे कहाँ रहेंगे, स्लम्स में ही रहेंगे। सो इस तरह से क्या करते थे जो वाइट्स लोग होते थे, इन ब्लैक्स के ऊपर बहुत सारा जुल्म करते थे, राइट। जैसा हमने अभी पढ़ा कि हेक्टर को गोली मार दी गई थी, ठीक है। वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेतो, एक शहर है साउथ अफ्रीका में जहाँ पर ब्लैक्स लोग ज़्यादा रहते थे, जिसका नाम था सोवेतो। हेक्टर पीटरसन लिव्ड देयर एंड ही एंड हिज क्लासमेट्स जॉइंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज इन स्कूल। हेक्टर ने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर, चूँकि जो स्कूलों में पढ़ाई होती थी वो वाइट पीपल लोग अपने हिसाब से सिलेबस बनाते थे, तो हेक्टर पीटरसन ने कहा कि नहीं, हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है जुलू, हम उसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक, ठीक है। Hector and other school students were being forced to learn the language that they wanted to learn, their own language, Zulu. The South African police beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd. One of the bullets killed Hector. This was on 16 June 1976. तो इस तरह से 16 जून 1976 को हेक्टर was shot by पुलिस। क्या हुआ, जब हेक्टर ने वाइट्स के खिलाफ प्रदर्शन किया कि नहीं, हमें आपकी लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, हमें हमारी जो लैंग्वेज है वो पढ़ाओ, जब ऐसा हेक्टर ने करने से मना कर दिया, मीन्स उनकी लैंग्वेज पढ़ने से, उनका लैंग्वेज पढ़ने से मना कर दिया, पहले तो पुलिस ने उसके ऊपर बहुत जुल्म किए और गोलीबारी में 16 जून 1976 को वो मारा गया। तो ये वाइट्स के द्वारा किए गए जुल्म थे ब्लैक्स के ऊपर, और ब्लैक्स लोग जो थे धीरे धीरे इनका जवाब दे रहे थे। तभी इतना कुछ हुआ कि तभी एक पार्टी बनी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, विच इज ऑल्सो नोन एज ANC। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बना और इसे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है साउथ अफ्रीका। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मीन्स विच इज़ द मेन ऑर्गेनाइजेशन जिसने कि वाइट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट या मूवमेंट शुरू किया। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन फाइनली नेल्सन मंडेला एक बहुत ही अच्छे लीडर थे साउथ अफ्रीका के, जो इसके साथ जुड़े और साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने में नेल्सन मंडेला का एक बहुत बड़ा रोल भी रहा, राइट। सो द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी, which was joined by many people, okay, which was joined by many people। बहुत सारे लोग अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ते गए, और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को जो है की और यू कैन से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है साउथ अफ्रीका का, क्योंकि सबसे पहले बनने वाली पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ही थी। इन्होंने बहुत जगह पर प्रोटेस्ट किया, धरना दिया, इनके साथ एक बहुत अच्छे लीडर जुड़े और उनका नाम था नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के ऊपर फॉट किया। नेल्सन मंडेला मैं आपको बता दूंगा, उसने 26 साल तक जेल में भी डाल दिया गया था बाय द वाइट्स। उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा था, नेल्सन मंडेला के ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा था और उन्हें 26 साल जेल में रखा गया। लेकिन फाइनली वो कहते हैं ना, सच की जीत होती है, और 1994 में साउथ अफ्रीका के लोगों ने मिलकर अपने देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना लिया, जहाँ पर सभी रेसेस के लोग, चाहे वो वाइट्स हो, चाहे वो ब्लैक्स हो, चाहे वो इंडियंस हो, सभी लोगों को रहने का अधिकार दिया। और उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जहाँ पर सबको बराबरी का हक मिलता हो। मीन्स साउथ अफ्रीका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1994 एंड they framed a constitution for their country where people were considered equal, right? So this is how South African nation became independent. तो यहाँ से एक बात समझ में हमें ये आती है that in any government
पार्टिसिपेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। किसी भी सरकार में पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हम सरकार में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? वी पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्शंस। हम क्या करते हैं? इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और अपने चुने हुए कैंडिडेट्स को वोट करते हैं। हमें लगता है कि हमें पर्टिकुलर पार्टी के कैंडिडेट को वोट करना चाहिए, बीजेपी के कैंडिडेट को, कांग्रेस के कैंडिडेट को, XYZ पार्टी के कैंडिडेट को वोट करना चाहिए। हमें जो पसंद आता है हम उसे वोट करते हैं और हम देखते हैं कि वो क्या काम करता है, और 5 साल में अगर वो काम नहीं कर रहा तो हम क्या करते हैं? फिर किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट कर देते हैं। तो ये एक तरीका है जो कि डेमोक्रेसी के अंदर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस को अच्छा बनाता है, बहुत बेहतर बनाता है, एंड दिस इज नोन एज पार्टिसिपेशन। यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस? हमारे को रेगुलर इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है? तो आंसर ये है कि रेगुलर इलेक्शन से हमें पता चलता है दैट वी पीपल हैव द पावर टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरा यह है कि इट इज़ एज्यूम्ड इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में माना जाता है दैट विदाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी कैन नॉट रन। लोगों के बिना पार्टिसिपेट किए हुए डेमोक्रेसी चलना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि देश का हर एक लोग एक साथ मिलकर कोई डिसीजन तो ले नहीं सकता है, इसीलिए हम पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में और हम अपने नेता को चुनते हैं जो हमारे बिहाफ पर कोई डिसीजन लेता है। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।